हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 40 ज्योग्राफी का, जिसमें आज हम करेंगे बायोस्फीयर यानी जैव मंडल जो है 14वां चैप्टर भूगोल का। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जिनके सिलेबस में बायोस्फीयर है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट और भी रहेगा क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सिलेबस को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussion on most important chapter here, biosphere. The biosphere is the first point where this is the most important biosphere and it is a limit. There is a first point for this chapter, and there is a, in a simpler term, is a biosphere referred to the narrow zone. It is a similar term is a biosphere referred to the narrow zone of the earth is which all life form exist. The all life is form a exit. Do you know why the life become a possible? It is a zone. There is a most important question here. Do you know why the life become a possible in the zone? It is because this zone in which all the three essentially things which is required as a substances of life are found to the right mixture. There are the land, lithosphere, air is atmosphere, and the water is hydrosphere. The life is possible because here present of three types of mixture here. The first air, land. Second air, the air. And third air, water. What? The geographical is a term here. Lithosphere is the land, and the atmosphere is the air, and the water is the hydrosphere. In other words, this is a narrow zone is the place where a lithosphere, atmosphere and hydrosphere is a meet. We must be appreciate that how to narrow this zone is. It extends vertically into there is atmosphere to about 10 kilometer downward into the ocean to depth about a 10.5 kilometer and into about a 27,000 feet of the earth as a surface where a maximum living organism have been found. There is some life form which are found in stem is the condition. Two examples of this type are algae and thermophil. The algae, which is supposed to be one of the earliest form of life, can exist even in the most hostile environments such as a frozen Antarctica. The other extremely side is the thermophils. Heat live is a loving is a bacteria, usually is a habitat deep sea, baconic, and the one having to temperature of more than 300 Celsius. In fact, this bacteria can be not survive in a temperature below the boiling point. That is the most important. This bacteria does not survive here a boiling point. That is important here. The situation was not like this when the life form began about 700 million years ago. It is believed to has been to only a narrow discordance has a land is composing to the only shore is a part of the oceans. As per the term of the expansion of the area in the terms of the ability of life form, it can be predicted that maybe after a few millions years, the expanses of the biosphere get extended is below this upper stratosphere,
and this shows that the biosphere has been to the evolvings over the time. Till now we have discussed about their vertically expansion, but horizontally there is a biosphere cover, there is an entire globe. Through the life may be not be possible in some of the hottest and the coldest part. There is important here. There is not a life may be possible in some hottest and the coldest of part. However, most living things are confined to be a narrow band, which is a pyramid. There is a capture of the solar energy. Through the process of the photosynthesis, which is stimulus for any organic life, and this narrow regions extend from about 180 to 200 feet below the sea level to the highest value of snow line in a tropical and subtropical mountain range. They say there are 6,550 meter above the sea level. Where it is extend beyond this is the line life from become very limited. There is an important part here. There is this narrow region extend from about 180 to 200 feet below the sea level to the highest value of the snow lines in a tropical and subtropical mountain range. When it stand to the beyond this is a line life from become very limited, and there is a most important point here. Here show the most important diagram here, biosphere. Biosphere here show in the diagram there is a center point. There is a cover with the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. There is a most important diagram for the exam view. Note down, and there is a biosphere is show in this center point. हमारे समक्ष जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर जैव मंडल, और जैव मंडल के अंतर्गत जो है हमारा पहला टॉपिक आया है जैव मंडल था उनकी इसकी सीमाएं। देखिए जैव मंडल है और जैव मंडल की कितनी सीमाएं हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जैव मंडल होती क्या है और जैव मंडल के जो है मुख्य तत्व कौन कौन से हैं और जैव मंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन के भरमार है, लेकिन कहते हैं क्वेश्चन जब तक हम समझें तब तक जो है हमें आंसर के वो ही समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझते हैं उनको आंसर भी सही से याद नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो तो आंसर जो है बेखूबी जो है आसानी से कर सकते हो। कहते हैं अगर जैव मंडल है उसकी सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर साफ कर देता है कि सीधे सादे शब्दों में जैव मंडल पृथ्वी की वह सक्रिय पट्टी है जिसमें सभी प्रकार के जीव विद्यमान हैं, यानी जैव मंडल में ही जीवों का जो है रहना संभव हुआ है और जैव मंडल में ही जीव जो है रहते हैं। क्या तुम जानते हो कि इस पट्टी में जीवन क्यों संभव हुआ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है कि आखिर इसी पट्टी में जीवन संभव क्यों हुआ। कहते हैं जीवन संभव होने के लिए तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, एक भूमि, ठीक है, जल और वायु। तो क्या इसी में पाया जाता है ये? तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो बच्चे इंटरेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है कि इस पट्टी में जीवन क्यों संभव हुआ? यह इसलिए क्योंकि यहाँ वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों वस्तुएं उचित मात्रा में मिलते हैं। अब तीन वस्तुओं कौन है? तो तीन वस्तु है भूमि, वायु, जल। अगर हम इसको भौगोलिक जो है शब्दों में कहें तो स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है। तो यही तीन कारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जैव मंडल यानी जीव जहाँ रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं, उसमें जीव जंतु का रहना संभव हुआ है। ठीक है, मैं अब दोबारा बता दूं कि ये तीन जो है महत्वपूर्ण जिसकी वजह से जीवन संभव हुआ है, भूमि जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, वायु जिसको हम वायुमंडल कहते हैं और तीसरा जो है जल यानी जल मंडल। दूसरे शब्दों में यह सक्रिय पट्टी वह क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलते हैं, जिसको जो है चित्र से भी हम प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। हम इन सक्रिय पट्टी का महत्व समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यह मंडल में जो है ऊर्ध्वाधर रूप में लगभग 10 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर कि वायुमंडल में रूप में ये लगभग 10 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह समुद्र में जहाँ लगभग कहते हैं 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से जो है लगभग जो है 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण है ये कि यह समुद्र में जहां लगभग कहते हैं 10.4 किलोमीटर की गहराई तक
और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं और विस्तृत भी हैं। जीवन के कुछ रूप विषय परिस्थिति में भी पाए जाते हैं, जैसे शैवाल जो है हम अलगाई कहते हैं और थर्मोफिलक। इस प्रकार के जीवन के दो उदाहरण हैं। कहते हैं शैवाल जिस जीवन के पहले रूप से एक माना जाता था, कहते बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है। दूसरे छोर पर जो है थर्मल फिलक ऊष्मा पसंद करने वाला है, यानी जीवाणु सामान्यतः जो है गहरे समुद्र में ज्वालामुखी रंध्रों में रहता है। अब देखिए ज्वालामुखी रंध्रों में किसी जीव का विकास करना संभव ही नहीं है, बट ऐसा हुआ है थर्मोफिलक के कारण। तो देखिए ये एमसीक्यू की रिगार्डिंग बन गया ना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है ये, और जो है इंट्रेंस टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जो उस उच्च तापमान पे रहते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई उच्च तापमान पर तो किसी का जीवित रहना संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा है थर्मोफिलक जो है समुद्र में ज्वालामुखी के रंध्रों में रहता है, जहाँ तापमान लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। 100 सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं। तो सेल्सियस में देखिए 300 कितना अधिक गर्म हो सकता है, ठीक है। वास्तव में जीवाणु जो है खतरनाक 0 से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकता। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं 100 सेल्सियस, उस पर ये जीवाणु जो है जीवित नहीं रह सकता। इसके लिए कम से कम 300 से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प यहाँ पर बात थी, शायद आपको इसके बारे में पता हो। कहते हैं जब जीवन शुरू हुआ तब स्थिति ऐसी नहीं थी। कहते हैं जब जीवन का उत्पत्ति यानी बिगेनिंग हुआ लाइफ का पृथ्वी पर, तो स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा आज हमें मिला हुआ है। लगभग 7 अरब वर्ष पहले यह समझा जाता था कि पृथ्वी केवल एक संक्रिय विच्छिन्न भूमि है जो महासागरों के उथल भागों के घेरे हुए हैं। जीवन के रूपों में उपलब्धता के संदर्भ में क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति के अनुसार यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कुछ हजार वर्षों बाद जैव मंडल का विस्तार ऊपरी क्षोभ मंडल से आगे बढ़ सकता है। और इससे पता चलता है कि जैव मंडल का समय के साथ विकास हो रहा है, यानी जैव मंडल का जो विकास है हो रहा है। अब तक हमने जो है जैव मंडल के ऊर्ध्वाधर विस्तार की चर्चा किया है, लेकिन क्षैतिज रूप से जैव मंडल पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं। हालांकि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं हो सकता। तो ये तो हम भी जानते हैं कि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन का पनपना संभव ही नहीं है, क्योंकि ना तो अधिक हम गर्मी सह सकते हैं, ना अधिक ठंड सह सकते हैं। तो ऐसे में जीवन का जो है विकास करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। कहते हैं अधिकतर जीवन एक सक्रिय पट्टी में सीमित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को जो है ग्रहण करती है, जो कई प्रकार के जैव जीवन के लिए आवश्यक है। और यह संकरा क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 180 से 200 फीट नीचे उष्मा तथा उत्क्षेपी कटिबंधीय पर्वत श्रृंखलाओं, यानी ये बात सही है कि समुद्र तल से जो है 6550 मीटर ऊपर में हम हिम रेखा के सबसे ऊपरी भाग तक विस्तृत है। कहते हैं जब यह हिम रेखा के पार विस्तृत होता है तो जीवन के रूप में बहुत कम हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर डायग्राम में भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं को उजागर कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जैव मंडल को दर्शाया गया है। अब जैव मंडल जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, ये कहते हैं तीनों तरफ से जो है विभिन्न स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से घिरा हुआ है, और बीच में जो है जैव मंडल का निर्माण करता है जहाँ पर जीव जंतु जो है जीवित रहने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम व्यू से है। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में और एग्ज़ाम तक जो है याद रखना चाहिए। और ये डायग्राम अगर आप शो करोगे तो एग्जामिनर को काफ़ी इम्प्रेस होगा और काफ़ी आपको अच्छा से अच्छा जो है मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं ऐसे ही एग्ज़ाम होता है और आपको इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। The next topic is the most important here, the component of the biosphere. There is a most important question here, the components of biosphere. The component of biosphere here, biosphere has a 3 basic component. The only 3 basic component of the biosphere. The first is biotic. Biotic means physical and inorganic substance. And second here there is a component and second biotic. Biotics means there is a organic components. And third component here, energy component. Let's discuss about there are 3 components in the detail. There is the most important here.
I repeat again, the first component is the most important biotic, that is included of physical and inorganic component. And second, biotic organic component. And third is energy component. Let us discuss here, is the most important here. The first point here, biotic component, there are detail here. This component is a bodily is a consist of all non-living elements which are initially for the survival of all living organism. And these are lithosphere, solid part of the earth crust, and the atmosphere and the hydrosphere here, the biotic component. And mineral nutrition content to gas and water are three basic requirements of organic life. The soil and the sediments constitute there is a chief resource of mineral is a nutrient. An atmosphere is a consist there a chief reserve of the gas is essential for the organic life. Ocean is a constitute that is a chief reserve of the liquid water, and where all this is a three reserves intermingles and the lattices become the most fertile area from organic life. The upper layer of the soil and so part of the ocean consider their most important area. The bugs sustain organic life, the upper layer of the soil, and permits is a penetration of the gases and the percolations of the moisture will be so part of the ocean. Allowed to the penetration of the sunlight, intermediates of the dissolved gases and the nutrient from land surface and the ocean's bottom. That is the most important land surface and ocean bottoms. The next here biotics component. There is a most important part here, biotic component. The biotic component here plants, animals and human beings including microorganisms constitute there are three biotic component of environment. In a way, this can be called the three subsystem. The three subsystem is the most important. The first here plants. The plants are most important among to the biotic component and they are only primary producer as the produce their own food through the process of photosynthesis. There is a plant is the most important. There is a primary producer. There is a produce of the food or when there is a process of photosynthesis and then there is called to the autotroph. There is called to the autotroph because there is a self-making of food of the photosynthesis process. Not only plant along to produce all kind of organic matter, but also is help in the recycling and recycling of organic matter and nutrient. There is an important point here. There is a help in the cycling and recycling of organic matter and nutrient. Thus, the plant are the major source of food as well as energy for all organism. There is a biotic component is the first point, is the most important here. And second point here, animals. The animals here is the most important. Well, the plant are a primary producer. The plant is a primary producer. The animal are the main consumer. The animal is a consumer here. There is animal as a heterotroph. There is animals are heterotrophs and there are three main functions of animals. To use of organic matter made available by the plant of food and second here to transform for the food into the energy and third here utilize the energy for a growth and development. That is the most important here. The third point is the most important here, microorganism. The microorganism is the most important factor here and component here. This consists of the variety of microbacteria like a fungi etc. And there is a number are unlimited and the properly known as the decomposer. You know that there is a decomposer here. As the name suggests, this organic decomposer, there are dead plant and animal and other organic matters. It is thought this is a process there is obtained there are food. Through this process of decompositions, they are differentiated to and separate the complex organic matter so that there are some could be a put to be reused by the primary producer, the plant. There is a microorganism processing here. There is the most important for the decomposer for the animal and plants here. The next here, C here, energy. The C energy is the most important here. This is a third and vital component of the biosphere, without which the life could not be has been be possible on this planet. That is important here.
the third and the vital component of the biosphere here. And here not has been to possible on this planet in the life. It is simply for the generation and reproduction of all biological life on this planet. All the organisms in there is a biosphere are like machines which is use energy to the work and also we convert one form to the energy to the another. That is important here. But do you know the source such as energy required for the functioning of the biosphere? Sun is the major source of energy without which we can not think about the extremeness of the biosphere. That is the most important point here. अजैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये अबायोटिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कहते हैं मोटे तौर पर इस घटकों में सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं जो सभी जो है जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे स्थल मन, भूमपट्टी का ठोस भाग, वायुमंडल और जलमंडल। तो अजैविक घटक में जो है तीनों स्थल सम्मिलित होते हैं, चाहे स्थलमंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो। खनिज पोषक तत्व कुछ गैस तथा जल जैविक जीवन के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी खनिज पोषक तत्व कुछ गैस तथा जल जैविक जीवन के लिए तीन जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कहते हैं मिट्टी अथवा अवसाद खनिज पोषक तत्वों को मुख्य भंडार है। इसे मृदा कह लो या मिट्टी कह लो, बात वही है, लेकिन मृदा और अवसाद जो है खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार के रूप में देखा जा सकता है। और कहते हैं वायुमंडल जैविक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक गैस का भंडार है। यानी वायुमंडल जो है जैविक यानी जीव जंतुओं के लिए जीवन के लिए आवश्यक गैस का भंडार है। तथा महासागर तरल जल का जो है प्रमुख भंडार है। यहाँ ये तीनों भंडार आपस में मिलते हैं, वह क्षेत्रीय जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। मृदा की ऊपरी परत और महासागरों के उथले भाग जैविक जीवन को जो है जीवित रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जीवन संभव तभी है जब जो है ये जैविक जो है जीवन के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और तभी जीवन जो है संभव है। अगर हम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं मृदा की ऊपरी परत गैसों के आसानी से अंदर जाने और नमी के अंदर रिसने देती है। तो मिट्टी तो जनरल सी बात है, मिट्टी की ऊपरी परत गैसों को आसानी से अंदर जाने और नमी के अंदर रिसने देती है क्योंकि मिट्टी ऐसा ही पदार्थ है। कहते हैं जबकि महासागर के उथले भाग सूर्य की रोशनी के अंदर जाने देते हैं और धरातल महासागर के तलिए में विघटित गैसों को पोषक तत्वों को आसपास में मिलने देते हैं। तो इसका प्रभाव जो है महासागरों में भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है अंदर तक पहुँचती है और जो महासागरों में जीव जंतु पल और बढ़ रही होती है उनको जो है पोषण प्रदान करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैविक घटक। देखिए जैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर जैविक घटक की हम बात करें तो इसमें पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु सहित जो है मानव पर्यावरण के तीन जैविक घटक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और एक तरीके से इन्हें तीन उपतंत्र भी कहा जाता है, यानी तीन रूपों में जो है इसे हम विभक्त कर सकते हैं। यानी पहले जो होंगे पौधा, दूसरे होंगे जीव जंतु और तीसरा होगा सूक्ष्म। तो पहले के अगर हम विचार रखें तो पहला आता है पौधे। कहते हैं जैविक घटक के पौधे सबसे महत्वपूर्ण हैं, केवल वे ही प्राथमिक उत्पादक है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्राइमरी सोर्स होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है और प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना भोजन बनाते हैं। यानी इनके पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है उसके कारण जो है भोजन बनाना बहुत आसान हो जाता है। और आपने गार्ड सेल के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ा होगा। तो सारे क्रियाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और इसी कारण जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना भोजन जो है पौधे स्वयं बनाता है, इसलिए इसको प्राइमरी सोर्स के रूप में देखा जा सकता है। पौधे न केवल सभी प्रकार की जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं बल्कि जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्वों के चक्रण और पुण्य चक्रण भी
बखूबी करते हैं। उसके पश्चात आता है पशु जीव जंतु, यानी पशु में आ जाता है। पौधे अलग प्राथमिक उत्पादक हैं, जो पशु मुख्यतः उपभोक्ता होते हैं, इसलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। पशुओं के 3 प्रमुख घटक होते हैं: पौधे द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थ का उपयोग करना, भोजन को ऊर्जा में बदलना, और तीसरा जो होता है ऊर्जा वृद्धि और विकास में प्रयोग करना। तो जीव जंतु जो होते हैं इसी तरह से जो है अपना जीवन यापन करते हैं और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जो है पौधे के बनाए हुए उत्पाद का जो है ग्रहण करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु जैसे फफूंदी इत्यादि आते हैं और इसकी संख्या असीमित है। यानी संख्या देखा जाए तो असीमित का अर्थ होता है जिसका कोई सीमा न हो, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है हमें जीवाणु मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं और इन्हें सामान्यतः अपघटक के रूप में भी जाना जाता है। आप सोचिएगा कि अपघटक का मतलब क्या होता है। अपघटक का मतलब होता है, आपने देखा होगा कोई जीव जंतु जो है सर गल रहा होता है तो सरने में जो है इन सूक्ष्म जीव का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यही जो है सराहने गलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीव क्यों इसको अपघटक कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जीवाणु मृत पौधे और पशुओं को तथा अन्य जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेड़ पौधा टूट के गिर गया है तो सड़ने लग जाती है और सड़ने का कारण क्या बनती है? सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कारण बनती है और उसको अपघटित कर देती है। इस प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं और अपघटन की इस प्रक्रिया द्वारा जटिल जैविक पदार्थों को विच्छेदित तथा पृथक कर देते हैं ताकि प्राथमिक उत्पाद अर्थात पौधे का उनका जो है पूरा पोषण प्राप्त हो सके। तो कहते हैं सभी जीव जंतु एक दूसरे पर ही आश्रित है। अब ये सोचिएगा कि ऐसा कैसे? देखिए, कहते हैं पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधों के न्यूट्रिशन की आवश्यकता भी होती है और न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होती है? कोई जीव जंतु मर जाता है या पेड़ पौधे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं तो वो सड़ते हैं और सड़ाने में किसका काम है? अपघटक का काम है, यानी सूक्ष्म जीव का काम है। और वो अपघटक जो है जो सारे को जो है खाद में कन्वर्ट कर देंगे जिससे पेड़ पौधों को खाद मिल जाएगा। तो कहते हैं हर कोई जो है इंटरडिपेंडेंट है। आप सोचिएगा कि जीव जंतु का यहाँ रोल कहाँ है? अब जीव जंतु मरेगा और उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो ज़मीन को ही जाएगा, धरती को ही जाएगा और धरती से जो है पेड़ पौधे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं हर कोई जीव जंतु जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी जो है धरती पर जीवन संभव हुआ है और ये तभी तक संभव रहेगा जब तक जो है सारी क्रियाएं होती रहेगी। अगर इनमें से कोई भी क्रिया अगर बंद हो गई तो पृथ्वी पे और जीवन संभव नहीं रह सकेगी और इंसान हो चाहे जीव जंतु हो उसका जो है अंतिम जो होगा दिन होगा और वो जीवन का जो है अंतिम चरण होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था जो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है तो अगला टॉपिक देखना मत भूलिएगा और भूलना ये भी नहीं है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जितने आप दोस्तों शेयर कीजिएगा उतना उनको भी फ़ायदा होगा और जग कल्याण की बात भी रहेगी। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, तभी जो है समय समय पर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा और आप ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाओगे, क्योंकि चैनल नया है और ये अभी इतना प्रसिद्ध नहीं है कि आपको हर बच्चों को इसका नाम भी याद रहे। ठीक है, कहते हैं जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है 8th क्लास से लेके आपको MA तक की सारी वीडियो उपलब्ध है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।